Hello students, with one more topic I am in front of you. Dear students of standard 9, I think you are just understanding very clearly. In last topic, we just study that how due to the revolution the common people's everyday life was just changed, right? And also informed you that the happiness of the democratic ruling, right, was not continued for a long time, right? There were few demerits and disputes were continued, but till 1799 it was just continued the ruling of the convention, right? But you will see with the beginning of 1800 the dispute expanded, and one of the major personality, Napoleon Bonaparte, who was a military commander, just participating in political sectors, right? So the period of 1799 to 1814, because in 1815 Napoleon Bonaparte defeated, so the between period of the 1799 to end of 1814, or it's in some book it is also written 1799 to 1815, is known as the period of the Napoleon, right? So dear students, what happened? Everything was going about to right, but there was rising of Hitler in 1804, beginning of the Napoleon era in France, right? So we will just study why Napoleon era is important, that people just like that person a much more. It was earlier expectation of the people that whenever Napoleon will come in power, obviously the ruling system be improved and there were so many rights will be given to common people. So whenever the Napoleon just comes out, right, it was welcomed by the people with optimistic hope, right? But the optimistic hope was not continued for a long, as it was the thinking of the people Napoleon will rule democratically, but this not happen. When the Napoleon just comes out, he just became dictatorship. No doubt Napoleon's ruling was based on the dictatorship, not based on the democratic ideas, but he was just became a lot of popular in French society, and his idea was just popularized not only in France but in many regions of the Europe and other part of Europe. Means you can say with the ideas of, or with the work of, with the function of Napoleon, the whole world was influenced, right? Now just come to the point topic. Napoleon Bonaparte just crowned as emperor in 1804, right? In 1804 he was crowned as emperor of France. Whenever he just became the ruler, he conquered many यूरोपियन नाइबरिंग कंट्री लाइक पोलैंड, बेल्जियम. you कह सकते हो कि नेपोलियन के टाइम में फ्रांस के टेरिटरी का काफ़ी विकास हुआ. वो आसपास के जितने भी पड़ोसी थे, नाइबर्स थे, उन सारे को उसने जीत लिया. ठीक है, जैसा कि हम बताए कि नेपोलियन शुरू में लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि वो एक डिक्टेटरशिप, एक डेमोक्रेटिक रूलिंग होगा, लेकिन उसके वो आने के बाद अपनी रूलिंग कुछ इस तरह से किया कि लोगों वो एक डिक्टेटरशिप रूप में हो गया. लेकिन एक डिक्टेटरशिप रूलर होने के बावजूद भी वो पॉपुलर रहा, क्योंकि उसने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशंस बहुत सारा किया. तो उसने जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशंस किया, इसके कारण पब्लिक काफ़ी खुश थे. पब्लिक को बेटर लाइफ मिल रहा था, लोगों को अच्छे खाने मिल रहे थे, लोगों की जीने का अच्छी तरीका मिल रहा था. तो कॉमन पीपल तो यही चाहते हैं, ठीक है.
तो डिक्टेटरशिप रूलर होने के बावजूद भी वो एक पॉपुलर रूलर था। इसके पीछे रीजन क्या था? क्योंकि उसने जो भी दुश्मन था फ्रांस का, वो सारे फ्रांस के दुश्मनों को उसने क्या किया, जीत करके उन सारे रीजन्स को अपने आपस में मिला लिया। कह सकते हो कि नेशनलिज्म की आइडिया जो है वो लिबरलिज्म की आइडियाज में कन्वर्ट हो गया, राइट। एंड देयर वेर सो मेनी कॉलोनीज, मीन्स लिबरल मतलब नेशनलिज्म के साथ साथ लिबरलिज्म और कॉलोनियलिज्म के सिस्टम को भी उसने इंट्रोड्यूस किया। किसके लिए? फ्रांस को क्या करने के लिए? एक बड़ा साम्राज्य बनाने के लिए, और फ्रांस को अपने रूलर्स बनने के बाद 1804 के बाद उसने फ्रांस के आसपास के नाइबरिंग रीजन्स को अपने कब्जे में मिला लिया। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि एक डिक्टेटरशिप रूलर होने के बावजूद वो पॉपुलराइज क्यों हुआ? तो पहले एक चीज देखते हैं कि उसका मानना था कि सही पर्सन अगर रूलर होगा तभी जाकर के राज्य का या प्लेस का कल्याण हो सकता है, ठीक है। और इसलिए उसने क्या किया, जो टेरिटरी को उसने जीता वो सारे जीती हुई टेरिटरीज पे अपने ट्रस्टफुल पीपल्स को वहां पर प्लेस्ड कर दिया, और उनकी सहायता से वो मतलब मॉनिटरिंग करने लगा रूलिंग का, जिसके कारण से उनके पीरियड में काफ़ी फ्रांस प्रोस्पेरस हुआ, काफ़ी खुशहाल हुआ लोग। और खुशहाल होने के साथ साथ उन्होंने कुछ ऐसे, हिटलर ने कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए जिस कारण से पीपल्स ज़्यादा खुश थे, और वो जिसके कारण से फ्रांस के मॉडर्नाइजर के रूप में हिटलर को जाना जाता है। तो उन्होंने क्या क्या किया, यहाँ पे लिखा है वाई ही वाज कंसिडर्ड एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, बिकॉज ही जस्ट मेक अ लॉ प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। मीन्स लोगों का जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज था, जो उनका अर्न किया हुआ प्रॉपर्टीज था, उनको जो अर्न करने का था, अर्न करके जो प्रॉपर्टीज थे उनको प्रोटेक्ट किया गया। उसने नियम बनाया कि लोगों का मतलब जो संपत्ति है उसका अपना संपत्ति है, उस पर सरकार का कोई अधिकार नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये था दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। सेकेंड, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट। इसके साथ मतलब उस समय अलग अलग रीजन्स में नाप और तौल के अलग अलग तौर तरीके थे। कहीं पे आप क्लास 10 पे डिटेल्स में इसको पढ़ोगे, ठीक है। जैसे कि अभी देखते हैं हम लोग कहीं पर सेंटीमीटर में, कहीं मीटर में, पहले हाथ से या फिर लग्गा से, अलग अलग तरीके हैं नापने तोलने का। तो फ्रांस और उसके कन्फेडरेशन में, वो टेरिटरीज में उसने एक ऐसा वेटिंग सिस्टम और स्टैंडर्ड वेटिंग सिस्टम लाया जिसके कारण से ट्रेडर्स को बिजनेस करने में काफ़ी सहूलियत होने लगी, और आसानी से वो अपने वस्तु को, अपने कमोडिटीज को करेंसीज में कन्वर्ट कर सकता था, और सारी यूनिफॉर्म करेंसी भी उसने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो सेकंड जो था, तो यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट वेर इंट्रोड्यूस्ड, एंड दिस हेल्प टू एक्सपेंड द बिजनेस एंड पीपल्स जस्ट बिकम सो मच प्रोस्पेरस, ठीक है। ट्रेडिंग इंप्रूव होने से फायदा बढ़ा, और फायदा बढ़ने के कारण से लोग काफ़ी रिच हुए और उनका लाइफ खुशहाल हुआ। आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डेसिमल सिस्टम। इतना ही नहीं, उन्होंने मतलब वेट्स को मेजर करने के लिए, या यूँ कहो कि मैथमेटिक्स को आसान बनाने के लिए उसने डेसिमल सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया। तो ये सारे चेंजिंग करने के कारण से देखा जाए तो मिडिल क्लास का मतलब पोजीशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हुआ, ट्रेडर्स का पोजीशन और स्ट्रॉन्गर हुआ। एक बात और आप ध्यान रखो, जो स्लेवरी था, स्लेवरी के सिस्टम को फिर से इसने रीइंट्रोड्यूस कर दिया था, क्योंकि इनका मानना था कि मीडियम क्लास के लोग जो है ट्रेड मतलब कमर्शियलाइजेशन करने के लिए, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए वर्कर्स की ज़रूरत हो, और वर्कर्स जो है जब तक अगर स्लेव्स नहीं होगा तो वर्कर्स वर्क ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी हाई नहीं होगी, ठीक है। तो उसके बाद प्लेस ट्रस्टफुल पर्सन्स एट डिफरेंट एक्वायर्ड टेरिटरी, और जो टेरिटरीज ने जीता था वहाँ पर अपने विश्वसनीय व्यक्ति को रख करके वहाँ पर शासन करने लगा, और वो ध्यान रखता था कि कॉमन पीपल्स को किसी भी तरह से दिक्कत ना हो, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिकल सेक्टर में, सोशल सेक्टर में भी बहुत सारा चेंजिंग लाया, पॉलिटिकल सेक्टर में तो चेंजिंग लाया ही। इन सारे कारणों से मतलब यू कैन से Napoleon Bonaparte was the modernizer of the French society, and that's why he became so much popular. Now let us continue furtherly. But what happened? The period of the Napoleon was, as just told you, from the 1799 to 1815. लेकिन जितना ही ज़्यादा ये मतलब
एग्रेसिव होता गया और जितना ही ज़्यादा जीतता गया उतने ही सारे इसके दुश्मन होते गए। अब इसके सारे यूरोप के जो पावरफुल कंट्रीज थे वो चाहते थे यूनाइट होकर के किसी तरह से नेपोलियन को हराया जाए, और यही हुआ लास्टली कलेक्टिवली ब्रिटेन, प्रूसिया, रसिया एंड ऑस्ट्रिया। ब्रिटेन, प्रूसिया, रसिया और ऑस्ट्रिया मिल करके मतलब नेपोलियन पर अटैक किया, फ्रांस पे अटैक किया, जिसके कारण से फ्रांस मतलब नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई। ठीक है, उसके बाद कहते हैं बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में हुआ। बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में हुआ, जिसमें कि फ्रांस का जो भी रीजन्स फ्रांस के द्वारा जीता गया था, ठीक है, नेपोलियन के द्वारा, उसको ये सारे आपस में बांट लिए। क्लास 10 में जाओगे तो और डिटेल्स में आप देखोगे, बांट लिए। और फिर से जो है फ्रांस में स्टार्टिंग में बॉर्बन डायनेस्टी की जो थे, ठीक है, लुइस 16 जिसका रूलर था, उस बॉर्बन डायनेस्टी को दे दिया गया, और वही लुइस 16 के फर्दरली अगले बेटे पोते या जो भी होंगे उनको शासन पे बैठा दिया। ठीक है, मतलब एक बार फिर से फ्रांस 1815 में देखा जाए तो जो रिवॉल्यूशन से पहले की सिचुएशन था वहां पे पहुंच गया। ठीक है, कहता है बैटल ऑफ वाटरलू डिफीटेड बाय हिज। लेकिन अगर देखा जाए कि भले ही नेपोलियन हार गया हो, लेकिन उसकी आइडियाज कभी डिफीट नहीं हुआ, और उसके कारण से क्या कहते हैं, उसके कारण से कहा जाए तो मतलब फ्रांस का रिकग्निशन बढ़ा। तो इस तरह से बेटा और भी हिटलर के बारे में आपको पढ़ना है तो स्टैंडर्ड 10 का एक टॉपिक है, इस अभी चल रहा है, उसमें आप देखोगे, सेकंड या थर्ड लेक्चर है अभी। ठीक है, उसमें आप हिटलर के बारे में और देख सकते हो। तो अब हम लोग आते हैं लास्ट पॉइंट पे, इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट पे, लीजेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रांस के रिवॉल्यूशन का महानता क्या है, दुनिया की देन क्या है, गिफ्ट क्या है। तो आज पूरी दुनिया इक्वलिटी और लिबर्टी की बात करते हैं हम लोग, तो वो इक्वलिटी और लिबर्टी पूरे वर्ल्ड को देने वाला कौन है, फ्रांस है। इसलिए वर्ल्ड के हिस्ट्री में फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इम्पॉर्टेंट रोल है। आज जिस भी पॉलिटिकल सिस्टम में दुनिया का 85% कंट्री एग्जिस्ट करता है, या वो सारे कंट्री जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, परहैप्स दिस इज द रिजल्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सो द आइडिया ऑफ the liberty and democratic right, the idea of liberty and democratic right are the legacy of French Revolution. Legacy of French Revolution, right? The idea of liberty and democratic rights is the legacy of फ्रेंच रिवॉल्यूशन। कहता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियोलॉजी से इंडिया भी इन्फ्लुएंस था, और इंडिया के एक पावरफुल वॉरियर्स टीपू सुल्तान और मॉडर्नाइजर ऑफ मॉडर्न इंडिया राजा राम मोहन राय वाज वेरी इन्फ्लुएंस्ड विद द आइडिया ऑफ रिवॉल्यूशनरी फ्रांस, राइट? सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ द चैप्टर इज कंप्लीटेड, राइट? But one more videos will be made for this chapter, and that videos will be the summary of whole chapter French Revolution. So don't forget to see the coming video, the summary of the French Revolution. That will be the summary of whole chapter and summary of whole discussion. Till the now we just discussed in perhaps 16 और 17 वीडियोज़। तो 17 और 18 वीडियोज़ का जो है समरी जो होगा इस चैप्टर का हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। विद दिस होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। थैंक यू।